everyone, I am Jessina Paris and I welcome you all to the daily news analysis of the day जो है 25th May 2024 जहां पे हम देखेंगे news from the Hindu and Indian Express. So let's start with the first article. Now as we know, the 6th phase of लोक सभा इलेक्शंस 2024 चल रहे हैं, इसीलिए जो आज के न्यूज़पेपर्स में काफी न्यूज़ इलेक्शंस के बारे में है, वोटिंग के बारे में है. However, we will take some important articles and discuss about them. कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे. तो अगर हम न्यूज़ की बात करें, we know there are a total of 7 phases and ये second last phase चल रहा है. The last phase will be on June 1st. June 4th को elections के results announce करेंगे. So this is mainly happening in the states of Haryana, parts of Bihar, Jharkhand, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे हो रहे हैं आपके elections. So we will understand with the next article then, and this is with regard to an editorial. तो ये editorial The Hindu में दिया गया है. And what is this article about? तो ये article पहले बताता है कि May 13th को, कुछ दिनों पहले, we have the Iran and India who signed a contract. कैसा contract? 10-year long-term bilateral contract for the operation, for the working of the Chabahar port. Chabahar port कहाँ पे है? Chabahar port है ईरान में. ठीक है? So this is an important agreement for us because this will help us link to Iran, to other countries in the Middle East as well. Mainly bypassing Pakistan. We don't have to go through Pakistan, mainly to reach these Central Asian as well as countries. So apart from this important port, important agreement, जो writer है, retired colonel है, तो राजीव अग्रवाल जी ये कहते हैं कि IMEC, what is IMEC? IMEC is mainly India, Middle East, यूरोप कॉरिडोर. इसके बारे में आर्टिकल का ज्यादा फोकस है. Okay, as the name suggests, the missing links in IMEC as shown by the Gaza war. So what is this article telling about? ये IMEC जो है, that was signed on when? 2023 में साइन किया गया था. कब? जब G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था. There were meetings going on. So on the sidelines, we sought out an agreement with countries like, let us know which are the countries that are involved in this. जैसे कि यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड द यूएस. ठीक है, कौन से कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है वापस से हम देखते हैं. द यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, देन वी हैव इंडिया, इटली, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएस. तो ये कंट्रीज ने क्या साइन किया था? IMEC साइन किया था इन द साइडलाइंस ऑफ द G20. एंड किसने डिजाइन किया है ये अग्रीमेंट, ये फॉर्मुलेट किसने किया है? वी हैव द PGII. PGII कौन है? वी हैव द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. नाउ द क्वेश्चन इज, why are we having some kind of an agreement? ये कॉरिडोर जो है, IMEC जो है, ये क्या हेल्प करता है? बेनिफिट्स क्या है इसके? तो इसके बेनिफिट्स है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टिम्युलेट करेगा, इंक्रीज करेगा. हमारा जो ट्रेड है विद यूरोप, विद द मिडिल ईस्ट, ये बूस्ट करेगा. And therefore it will bring about connectivity, it will bring about integration of mainly the Asia, the Arabian Gulf and the Europe. ठीक है? Now this article tells us कि it is like one such you can say as a opposition to the, or as a counter to the BRI. BRI क्या है? It is the Belt Road Initiative. Now BRI किसका इनिशिएटिव है? ये है चाइना का इनिशिएटिव, राइट? ये चाइना का इनिशिएटिव. तो ये इसको काउंटर करने की, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट इज ऑल्सो वांटिंग टू इंक्रीज इट्स कनेक्टिविटी विद यूरोप एंड द कंट्रीज अलाइक. एंड ये इंडिया के लिए खतरा ही है. इट इज ऑल्सो वन सच एन ऑपोजिशन और द काउंटर टू इंडिया. तो इसके लिए हमने क्या डिजाइन किया है? हमने डिजाइन किया है IMEC. Now let's understand a little about IMEC. ये आर्टिकल ने बहुत अच्छे से स्टेट किया है
what is the parts of the IMEC and so we're going to break it down for you. तो IMEC जो है ये 2 separate corridor होते हैं इसके. Okay, it has 2 separate corridor. Now let's understand what is this corridor. तो ये है IMEC का जो पूरा अगर हम देखें हाउ इज द कनेक्टिविटी हैपनिंग. फर्स्ट वन वी हैव द ईस्टर्न कॉरिडोर. ईस्टर्न कॉरिडोर यानी कि मुंबई से लेके इट इज ऑल्सो गोइंग टू लिंक इन सर्टन पोर्ट्स ऑफ गुजरात, जैसे कि मुंद्रा कांडला पोर्ट कहते हैं. तो यहाँ पे भी ये पोर्ट को लिंक करके इट विल लिंक इट टू व्हाट, टू द अरेबियन गल्फ. अरेबियन गल्फ में जैसे कंट्रीज हैं हमारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की बात करें या सऊदी अरेबिया की बात करें, यहाँ पे ये लिंक हो रहा है टू द अरेबियन गल्फ. और अरेबियन गल्फ से कहाँ रिलेट हो रहा है, कहाँ लिंक हो रहा है, इट इज लिंकिंग टू द यूरोपियन स्टेट्स, जैसे कि ग्रीस के पोर्ट्स में ऑल ऑफ दैट इट इज लिंकिंग. फ्रांस के, इटली के पोर्ट्स में ये लिंक हो रहा है. सो इट्स अ eastern corridor and the second part is the northern corridor. So the article correctly states that we have the 2 corridors. Okay, so 2 separate corridors. एक ईस्टर्न कॉरिडोर है जो कनेक्ट क्या कर रहा है, इंडिया और अरेबियन गल्फ को, और दूसरा कौन सा कॉरिडोर कहा हमने, नॉर्दर्न कॉरिडोर. नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्ट्स द अरेबियन गल्फ टू द यूरोप, अरेबियन गल्फ टू यूरोप. सो ये जो कॉरिडोर है या लिंकिंग की बात कर रहे हैं हम, how is this? This is going to be in the form of ships, right? Ships का कनेक्टिविटी होगा, रेल का कनेक्टिविटी होगा, रोड कनेक्टिविटी होगा. सो इट्स गोइंग टू हैव एन अमेलगमेशन, मिक्स ऑफ ऑल ऑफ देम. ठीक है, रेलवे नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट, शिप टू रेल ट्रांजिशन, ये सब इंक्लूडेड होगा. एंड दिस बेनिफिट इज ऑल्सो दैट ये जो हमारा ट्रैवल का टाइम है टू टेक गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, ये बहुत कम करेगा. इट्स गोइंग टू रिड्यूस द ट्रैवल टाइम एज वेल एज इट इज गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ट्रैवल. तो कितना ये रिड्यूस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड बाय इन द आर्टिकल. इट विल रिड्यूस 40% of the time taken and 30% of the cost taken. ठीक है, so that is the benefit of this particular corridor. Now which are the ports that this corridor is talking about, ये भी mention किया है. Now what is it? As we said, Kandla, Mumbai, Mundra. कांडला, मुंबई और मुंद्रा की बात करें, कांडला एंड मुंद्रा आर इन गुजरात, मुंबई राइट महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, that is the Mumbai port, and it is connecting to what, Fujairah and Jebel Ali, Fujairah and Jebel Ali and Abu Dhabi. ठीक है, फुजैरा, जेबल अली, अबू धाबी, ये कहाँ पे है, ये है यूएई. सो यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ दीज पोर्ट्स बिकॉज यहाँ पे जीके क्वेश्चंस बन सकते हैं. पोर्ट्स कहाँ पे एग्जैक्टली उनका लोकेशन, तो अगर हम फुजैरा, जेबल अली और अबू धाबी की बात कर रहे हैं, ये पोर्ट्स कहाँ पे है, यूएई. ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. एंड अगर हम रेल टू रोड की बात करते हैं, वी ऑल्सो फाइंड Saudi Arabia, Jordan, ठीक है, they are connecting mainly to the European parts. और what are the ports in Europe, ये भी आर्टिकल में दिया है. Haifa in Israel, okay, Haifa in Israel, Marseille in France, Marseille in France, Messina in Italy, okay, पोर्ट का नाम क्या है, मेसिना, इटली. एंड ग्रीस में जो पोर्ट है उसका नाम है Piraeus, okay, Piraeus. So these are certain names of the ports and the place where they are located in. जैसे मेसिना इटली में है, मर्साई फ्रांस में है, पिरायूस जर्मनी. तो ये जो इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया है, कितना बड़ा है, 4800, इतना लंबा है ये, 4800 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर है, ताकि हम ट्रेड इंक्रीज करें, हम एक्सेसिबल बनाएं, ट्रेड फैसिलिटीज इंप्रूव करें, गुड्स सिक्योरली पहुंचाएं. सो दिस इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द IMEC. नाउ व्हाट इज द आर्टिकल ऑल्सो टॉकिंग अबाउट? द आर्टिकल सेज कि कुछ मिसिंग लिंक्स है इन द IMEC. नाउ व्हाट आर द मिसिंग लिंक्स? अभी हमको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. वी नो वन पोर्ट दैट इज देयर, ये कहां पे है, इजराइल. कौन सा पोर्ट है, हाइफा, राइट. तो यहां पे आर्टिकल कहता है बिकॉज ऑफ द गाजा वॉर दैट ब्रोक आउट, ये जो प्रोजेक्ट है ये बंद हुआ, ये उसमें कुछ काम नहीं हो पाया. बिकॉज यहाँ पे जो शिप्स हम पास करते हैं, we find certain militants coming in, or when they are stopping ships going to Israel, right? So these are like the missing links. Mainly
where there are certain obstructions to the working of this particular corridor. सो राइटर ये कहते हैं कि हमको कुछ करना चाहिए, वी हैव टू थिंक इट थ्रू दीज मिसिंग लिंक्स सो दैट व्हाटएवर बेनिफिट्स दैट वी टॉक्ड अबाउट दे विल बी डिलीवर्ड, दे विल बी पॉसिबल. सो यहाँ पे another important fact that is given in the article for us, ऑपरेशन संकल्प. ठीक है, ऑपरेशन संकल्प ये किसका ऑपरेशन है? दिस ऑपरेशन इज बाय द इंडियन नेवी. इंडियन नेवी का ये ऑपरेशन है ताकि हम सेफ पैसेज अलाउ करें ऑफ द इंडियन शिप्स थ्रू द पर्शियन गल्फ. नाउ व्हाई डू वी नीड सर्टेन ऑपरेशन लाइक दिस? बिकॉज ऑफ द रिबेलियंस दैट वर देयर, कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज हैपनिंग. तो ताकि हमारे जो शिप्स है सेफली पहुंचे थ्रू द पर्शियन गल्फ, इसीलिए हमने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? Operation Sankalp. That is also mentioned in today's editorial. So we have understood the gist of the editorial. हमने बहुत सारे facts इसे उठा के समझ लिए हैं, and which is also going to be very important for your exam. And we've seen the whole कैसा corridor कहाँ से कहाँ तक ये समाप्त होता है. So let's move on to the next editorial given in the Hindu again, and this is with regard to the 46th Antarctic Treaty कंसल्टेटिव मीटिंग. इसका फुल फॉर्म है ACTM का, ATCM का फुल फॉर्म है अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग. इसका और एक नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज द अंटार्कटिक पार्लियामेंट. ठीक है, इसको अंटार्कटिक पार्लियामेंट भी कहते हैं. एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये जो मीटिंग है ये एनुअल हर साल होती है. मेनली ऑफ हुम, जिन्होंने साइन किया है अंटार्कटिक ट्रीटी. ओके, जो भी मेंबर कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया है अंटार्कटिक ट्रीटी, वो साथ में मिलके डिस्कस करते हैं. इन विच व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटिंग? ATCM, यानी कि अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग. तो ये अभी चल रही है. द आंसर इज यस. कहां पे चल रही है? द आंसर इज कोची. केरला के जगह में कोची में ये मीटिंग चल रही है. 60 कंट्रीज यहाँ पे शामिल हुए हैं. एंड दिस मीटिंग इज डिस्कसिंग ऑन व्हाट? ताकि हम जो अंटार्कटिक रीजन है, ओके, द पोल्स रीजन एंड द अंटार्कटिक पोल रीजन, यहाँ पे the use of it should be done very wisely. Sustainable development हो यहाँ पे, रिसर्च को हम बूस्ट करें, रिसर्च ज्यादा से ज्यादा हो, क्लाइमेट चेंज पे अगर कुछ काम करना है, ये सब डिस्कस करने के लिए we have this meeting. Okay, we have this particular meeting. So what is this article talking about? It says that India must continue to oppose unregulated tourism. See, tourism भी होता है, even though it's Antarctic. यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बर्फ ही बर्फ है. It is very isolated, but still tourists are going, and we never know कि कुछ साल बाद, maybe कुछ decades बाद, यहाँ पे tourism बहुत बढ़िया से चालू भी हो सकता है. बट अगर हम पहले से ही इसको रेगुलेट ना करें, इंश्योरिंग कि इसका जो क्लाइमेट पे जो असर है, जो इफेक्ट्स है, यहाँ पे पहले ही हम इसको कंट्रोल करें, देन वी कैन look for a better future. We can look for a sustainable development. So the writer talks about that we should take efforts given being a party to this particular meeting, और हम ये कंडक्ट भी कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए तो गर्व की बात है. एंड वी नीड टू इंश्योर कि अनरेगुलेटेड टूरिज्म बहुत अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट हो. मेनली इफ यू टॉक अबाउट दिस कंट्री, कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कुछ मतलब लोग यहाँ पे नहीं है. इट्स नॉट, इट डज नॉट हैव इट्स ओन इंडिजिनियस पॉपुलेशन. जैसे कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वी टॉक अबाउट एशिया, दे हैव इट्स ओन पीपल. अंटार्कटिक डज नॉट हैव, बिकॉज ऑफ द आइस, द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये अभी तक एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, बट कुछ साल बाद ये हो सकता है. सो दिस वाज अबाउट द आर्टिकल. नाउ व्हेन वी हैव टू नोट डाउन सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द आर्टिकल, जैसे हमने बताया कि अंटार्कटिक ट्रीटी जिसने साइन की है वो इस पार्ट, वो इस ट्रीटी का पार्ट बनता है, वो इस मीटिंग का पार्ट बनता है. ना ये ट्रीटी क्या है ये भी समझते हैं. Now when you talk about the treaty, it was signed in December 1st, 1959. When was the treaty signed in? 1959. Okay, and if you talk about वो फोर्स में कब आई? ये फोर्स में आई थी 1961. Okay, 2 साल के बाद ये फोर्स में आई. It was signed, but the treaty came across in 1959.
पहले किन्होंने साइन किया था? 12 सिग्नेटरीज ने साइन किया था, सिर्फ 12 कंट्रीज थे। उसके बाद इफ यू सी द करंट नंबर इट्स 56। सो बहुत सारे लोगों ने इसमें ऐड भी किया है, बहुत सारे ने इसमें अग्रीमेंट में पार्ट भी लिया है। क्या इंडिया ने पार्ट लिया है? द आंसर इज यस। और इंडिया ने ज्वाइन किया है 1983 में। व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द अंटार्कटिक ट्रीटी? 1983। और इसी को फुलफिल करने के लिए हमने लॉज भी बनाए, देरी से बनाया लेकिन हमने बनाया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द अंटार्कटिक ट्रीटी और अंटार्कटिक एक्ट ऑफ 2022. Okay, Antarctic Act of 22, because we are part of the Antarctic Treaty. Now, why is the Antarctic Act important? Antarctic Act जो 2022 का है, very recent है. It is mainly so that we are controlling or regulating whatever activities. अभी देखो private bodies भी start करना चाहेंगे from India to settle some research stations, right? तो इसको regulate करने के लिए हमने भी अभी steps लिया है, mainly by this act जो बताता है कैसे हमारे जैसे observatories है, हमारे जो research centers है, हम कैसे इनको सेटअप कर सकते हैं, ensuring that the environment in the Antarctic is preserved, it is not violating international laws and so. और हमारे अगर हम रिसर्च स्टेशंस की बात कर रहे हैं, कौन से हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं? वी हैव दक्षिण गंगोत्री, दैट इज 1983 टू 1990, दिस वाज ऑपरेशनल, राइट नाउ इट्स नॉट ऑपरेशनल, 1990 में ये बंद हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मैत्री एंड भारती, मैत्री भारती, दे आर ऑपरेशनल स्टिल। इंडिया का प्रपोजल भी है कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं और एक रिसर्च स्टेशन, दैट इज मैत्री 2 के नाम से। मैत्री 2 के नाम से कब स्टार्ट करेंगे? 2029 में, 2029। सो ये भी हम प्रपोजल्स रखेंगे in this particular meeting is what we have the information. Now let's move on to the next article of the day, और ये द हिंदू का आर्टिकल है with regard to the cyclone, right? Cyclone is likely to make landfall नियर बंगाल। कल के दिन में यहाँ पे साइक्लोन आ सकता है, is what the IMD tells us. Now we have to know a number of facts for this. Mainly साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन रेमाल का नाम क्या है, रेमाल कैसे नाम पड़ा, ये सब भी हमको इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। So let's understand about this, starting with the name साइक्लोन रेमाल। ये जो साइक्लोन रेमाल है ये कहाँ पे होगा? अरेबियन ओशन, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, इट इज इन बे ऑफ बंगाल, और इसीलिए इट कैन कम टू बंगाल। उसका जो इफेक्ट्स है, साइक्लोन कहाँ पे पड़ सकता है? बंगाल पे पड़ सकता है, इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट साइक्लोन रेमाल। ये जो नाम पड़ा रेमाल, ये किसने दिया है ये नाम? ओमान, ठीक है, ओमान ने नाम दिया है। तो क्या इंडिया ने भी नाम दिया होगा? यस, इंडिया ऑल्सो हैज गिवन नेम्स, एंड ये जो नाम है ये हमेशा अगर एक लिस्ट होता है, ठीक है, एक लिस्ट में ऑलरेडी द कंट्रीज हैव गिवन द लिस्ट टू द मेजर पेरेंट बॉडी, एंड दैट बॉडी देन ब्रिंग्स आउट और इश्यूज दीज नेम्स। और ये कैसे हम नेम्स डिस्कस करते हैं ये भी समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। Okay, so before understanding, first we have to list down certain important aspects. Okay, so यहाँ पे names के लिए certain rules है, ठीक है, आप कैसा भी कुछ भी नाम नहीं रख सकते हैं। तो रूल्स क्या है कि ये जो नाम है ये पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल, कुछ ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, बिलीव्स, कल्चर्स, जेंडर, इसको हर्ट नहीं करना, ये बहुत न्यूट्रल होना चाहिए। सो रेमाल का मतलब भी है, अगर रेमाल की बात करें, रेमाल मींस सैंड, ठीक है, ये किसने रखा है? ओमान ने रखा है। नाउ शुड नॉट ऑफेंड एनी ग्रुप्स, ठीक है, बहुत डेरोगेटरी कुछ बैड वर्ड्स नहीं होने चाहिए। इट कैन नॉट बी मोर देन 8 लेटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 8 लेटर का रिस्ट्रिक्शन भी है। नो, व्हाई डू यू थिंक 8 लेटर का रिस्ट्रिक्शन है? बिकॉज अगर इतना बड़ा नाम है, अगर आप लोगों को सतर्क करना चाहते हो, अब एक साइक्लोन आ रहा है, देन मेनली it should be small, it should be crisp, right? It should be easy to understand, it should be easy to inform the people. तो इसीलिए नाम छोटा होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी अनप्लेजेंट, क्रूअल, ठीक है, ऐसा नहीं कि साइक्लोन है इसलिए कुछ गंदा नाम दिया, नहीं,
it should ensure that it is not unpleasant, it should not be cruel, even though the cyclone can be, but you should not give it that name. Short होना चाहिए, easy to say, pronounce करने के लिए आसानी होनी चाहिए, and cannot repeat names of tropical cyclones. अगर एक नाम already दिया गया है, ओके, सो वी हैव साइक्लोन्स लाइक बिपरजॉय, बिपरजॉय ऑलरेडी था पहले, तो वापस से बिपरजॉय साइक्लोन नहीं बताना है उसको, वी कैन नॉट रिपीट द नेम्स. So Amphan था, बिपरजॉय था, these are named cyclones that were mainly found in the Bay of Bengal region as well. So repeat नहीं होना चाहिए. It can be rejected by member countries if their conditions are not met. अगर हमको लगा कि ये probably गाली है एक जो उन्होंने शब्द दिया है, तो हम reject भी कर सकते हैं. And finalized names can also be reviewed. अगर हमने finalize किया तभी भी हम ये review कर सकते हैं. These are the rules for naming a cyclone. Now what is the benefit of naming a cyclone? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोगों में अवेयरनेस लेके आए. Okay, now when people know that there is a cyclone called Remal happening, they will be more aware of it. because हमने नाम दिया है, it's not just an ordinary cyclone, right? So naming cyclones are important to pass on the information to the people for mainly for public safety. रेडियोज में जैसे अगर हम इन्फॉर्म करते हैं लोगों को, टेलीविजन में अगर इन्फॉर्म करते हैं, so it's easier to always have a name associated with it, and therefore we have the naming of the cyclones. So now we've understood the conditions for naming the cyclone. Now let us understand with regard to हम इसको कैसे नेम करते हैं. So there are 6 regional specialized centers. Now what are the 6 regionalized centers? जैसे हमने देखा है World Meteorological Organization, है ना, इनके 6 सेंटर्स थे. ये पहले भी हमने न्यूज आर्टिकल्स में कवर किया था कि 6 सेंटर्स हुए, रीजनल सेंटर्स हैं. जैसे IMD इज वन सच रीजनल सेंटर ऑफ व्हाट, ऑफ द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो बे ऑफ बंगाल रीजन, अरेबियन सी का जो रीजन है, यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन्वॉल्व्ड? इट विल बी द IMD, राइट? इट विल बी द IMD. तो हम एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर वन ऑफ द 6 ऑर्गेनाइजेशन. So therefore IMD जो है, it's one of the 6 RMCs. Okay, RSMC क्या है? We are called one regional center. Regional center का नाम क्या दिया गया है? Regional Specialized Meteorological Center. ठीक है, ये इतना बड़ा था and there are so many centers, there are 6 centers. तो हमने आसान होने के लिए क्या नाम दिया है? India Meteorological Department. That is the name given, right? So ये सेंटर्स क्या करता है? दे गिव आउट एडवर्सरीज, दे गिव आउट सर्टेन इशूइंग कि अगर हमको नेम करना है, ये बॉडी इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट डज द RSMC डू? RSMC जैसे IMD है, इट विल प्रोवाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का इंफॉर्मेशन जो है, एडवाइजरीज है, ये देगा टू डिफरेंट कंट्रीज इन द बे ऑफ बंगाल, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज है. लाइक फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, कतार, सऊदी अरेबिया, म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड येमेन. ठीक है, कौन से 13 कंट्रीज के लिए IMD इशू करेगा नोटिसेस, एडवाइजरीज? ये इंपॉर्टेंट है. वापस से करते हैं. व्हाट आर द 13 कंट्रीज दैट IMD गिव्स advisories? It is starting with alphabetically: Bangladesh, India, Iran, Bhutan, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, United Arab Emirates and Yemen. ठीक है, you will not find Bhutan, Nepal because they are landlocked countries, right? They are landlocked countries. So ये आपको ध्यान में रखना है, 13 member countries. एंड ये जो 13 कंट्रीज है, ये अपने अपने एंड से लिस्ट देते हैं कि ये नाम हम रखना चाहते हैं ऑफ साइक्लोन. ठीक है, ये लिस्ट देते हैं कि ये नाम हम रखना चाहते हैं ऑफ द साइक्लोन. सब कंट्री एक एक लिस्ट देता है. और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये नाम ही रखना चाहिए? वी डू इट अल्फाबेटिकली. ठीक है, हाउ डू वी गो अबाउट इट? अल्फाबेटिकली. तो अगर ओमान ने दिया है, नेक्स्ट अभी कौन नाम देगा? पाकिस्तान नाम देगा, उसके बाद देगा कतार देगा, उसके बाद सऊदी अरेबिया. सो ऐसे नाम पिक आउट करेंगे फ्रॉम द लिस्ट दैट दे हैव गिवन. ठीक है, 2020 न्यू लिस्ट ऑफ नेम्स वर रिलीज्ड. 169 नेम्स दिए गए हैं फ्रॉम द कंट्रीज. 13 कंट्रीज ने 13 नाम दिए हैं. ठीक है, एंड उसमें से एक एक हम सिलेक्ट करते हैं.
सो 2020 में लास्ट हमको नेम्स दिए गए हैं, बहुत सारे ऑलरेडी यूज भी कर लिए हैं क्योंकि इतने सारे साइक्लोन्स होते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द रेमाल एंड द नेमिंग ऑफ द साइक्लोन्स. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड विद द नेम्स ऑफ द साइक्लोन. सो अगर हम बात करें, यू विल फाइंड दैट साइक्लोन जैसे की बात करते हैं, दे आर कॉल्ड और दे हैव डिफरेंट नेम्स. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स? जैसे कि अगर हम हरिकेन्स की बात करते हैं, वी हैव नियर नॉर्थ अमेरिका, दे आर मेनली कॉल्ड एज hurricanes. When we talk about Atlantic Ocean, they are mainly called as hurricanes. Apart from that, tropical cyclones की बात करते हैं. When we talk about tropical cyclones, we're talking about region in the Indian Ocean, right? In this particular region, we call it simply as tropical cyclones. हम कुछ दूसरा नाम नहीं देते उसको. Whereas Australia में, they are also called as willy willies. ठीक है, विली विली कहां पे यूज करते हैं? ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं. जैसे टाइफून्स जो है, ठीक है, टाइफून्स ये जो नाम पड़ता है इन मेनली इन द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन में टाइफून, जैसे कि अगर हम रीजन ऑफ चाइना, साउथ चाइना सी की बात करते हैं, दे कॉल इट टाइफून्स. दे मे नॉट सिंपली से एज cyclones or tropical cyclones. Tropical cyclones हम यूज करते हैं. Now when you talk about cyclones, right, we've seen the names of these cyclones. Cyclone exactly क्या होता है? Okay. Okay, now remember there are two types of cyclones. एक है tropical cyclones and the second one is extra tropical cyclones. Okay, tropical and extra tropical cyclones. Now let's understand tropical ये नाम कैसे पड़ता है. Now whenever cyclones occur between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, ठीक है, Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn, इन दो रीजन के बीच अगर साइक्लोन फॉर्म होता है, we call it tropical cyclone. तो अगर साइक्लोन्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, उनको क्या कहेंगे? हम कहेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इसलिए ये नाम पड़ता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, राइट? सो देयरफॉर वेयर इज दिस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल? इन द पोलर रीजन, राइट, इन द टेम्परेट रीजन. इसलिए हम उसको टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं. Why do we call it temperate? Because they are formed in the higher latitudes. They are formed in the higher latitudes. इसीलिए हम इसको कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. Now what or how is this working of the tropical cyclones? Tropical cyclones are mainly affected. India affect होती है tropical cyclone से क्योंकि हम इस region tropic के region में है, tropical region में है. Now let's understand ये कैसा होता है. Here we have a low pressure. It is characterized by a low pressure, ठीक है, and जो विंड्स इनको सर्कुलेट करती है. नाउ ये सर्कुलेटिंग जो विंड्स होते हैं, इनका जो डायरेक्शन होता है दैट डिफर्स इफ इट इज इन द नॉर्दर्न और इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है, इफ इट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये इक्वेटर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ये विंड्स रोटेट करते हैं, कैसे रोटेट करेंगे? दे विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? Okay, it will rotate like this. The rotation of the winds. अगर साउथ की बात करें, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, how are the cyclones rotating? They will rotate clockwise. ठीक है? And where are these cyclones formed? ये क्या लैंड में फॉर्म होती है? The answer is no. The tropical cyclones are found or they are formed in the oceans. ये जो oceans दिख रहे हैं, इंडियन पैसिफिक, यहाँ पे फॉर्म होते हैं. क्यों? Because the conditions that are there, जैसे कि humidity high होनी चाहिए, the पानी का जो तापमान है, temperature है, it should be about 26-27 degrees warm water. Okay, it should have Coriolis force जो direction देता है विंड को रोटेट करने के लिए, राइट, एंड विंड का स्पीड होनी चाहिए. तो ये सब कंडीशंस जो उनको ओशन में मिलते हैं, इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे फॉर्म्ड इन द ओशन. एंड वी फाइंड दैट these are mainly the important geographical, or you can say phenomena, atmospheric phenomena that also IMD is reporting and giving information advisories to the regions that are surrounding,
राइट, सराउंडिंग के रीजन्स को ये इंफॉर्मेशन भी देती है. सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू साइक्लोन्स एंड जहां हम इनको देखते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है. Let's understand the next article of the day, which is given in Hindu. This is with regard to China warns of Taiwan war as army drills encircle island. ये जो आर्टिकल है ये कल भी न्यूज में था. इसको हम दोनों आर्टिकल्स को मिला के समझते हैं बैकग्राउंड के साथ. Now when you talk about ताइवान, ठीक है, पहले मैप देखते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है. या यू कैन सी दिस ताइवान इज लोकेटेड हियर. चाइना के बिल्कुल यहाँ पे लोकेटेड है. ताइवान स्ट्रेट है बिटवीन ताइवान एंड चाइना एंड वी हैव द फिलिपीन सी. ओके, फिलिपीन सी है यहाँ पे. वी हैव द साउथ चाइना सी here and the East China Sea here. So basically you see the geographical region of the Taiwan. तो न्यूज आर्टिकल क्या बताता है? न्यूज आर्टिकल कहता है कि जो हमारा चाइना है ये नेवी ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है इन दिस सराउंडिंग रीजन, इन द सराउंडिंग रीजन. ओके, सर्कलिंग द ताइवान. ये क्या कर रहा है? जो आर्मी उन्होंने लेके रखा है, नेवी ड्रिल्स जो कर रहे हैं उसके चारों ओर ताइवान के नेवी ड्रिल्स कर रहा है. और इसका जो नाम क्या है, ये नेवी ड्रिल जो कर रहा है इसका नाम है जॉइंट स्वॉर्ड 2024. ओके, इन्होंने इसको एक कोड नेम दिया है. तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस रिलेटेड, इट इज द आर्मी ड्रिल्स ऑफ चाइना इन द सराउंडिंग द ताइवान कंट्री. सो रिमेंबर जॉइंट स्वॉर्ड 2024. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ताइवान मतलब क्यों चाइना कर रहा है ये सब, क्यों ये सता रहा है अपने नेबर कंट्री को. Now China doesn't think of it as a neighboring country. China thinks कि ये हमारा ही पार्ट है. This is our territory itself. And ये अभी से नहीं, in fact इसका हिस्ट्री है. So if you talk about the Qing dynasty, ये चाइना का Qing dynasty है, that was mainly captured or that was mainly ruling even the Taiwan region. And कितना तक 1895 तक ये रूल करी थी. ये चाइना की डायनेस्टी है. इन द फर्स्ट साइनो जापानीज, साइनो जापानीज का मतलब क्या है? चाइना जापान का वॉर था 1895 में. जब ये वॉर चल रहा था जापान जो है ये जीत गया था एंड देयरफॉर इट टुक व्हाट, इट टुक ताइवान. ठीक है, ताइवान उन्होंने कब्जा किया था. दे हैड कैप्चर्ड ताइवान. फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2 1945. ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जापान ने ताइवान को सरेंडर कर लिया. दे लेफ्ट ताइवान एंड दे बिगैन they moved back to Japan and they started their development process. तो 1945 में they have surrendered Taiwan. Then comes what is the situation? यहाँ पे we had two parties. ठीक है, we have the KMT and the CPC, the Communist Party of China. एंड द KMT यानी कि द कॉमिंगटान भी कहते हैं, और द चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी. तो कॉमिंगटान पार्टी जो है दे वर मेनली द लीडर्स और दे वर रूलिंग दिस पर्टिकुलर रीजन ताइवान. एंड चाइनीज सिविल वॉर ब्रेक्स आउट. ठीक है, एक वॉर ब्रेक होता है. एंड कौन है इसके बीच में? कॉमिंगटान है और CPC, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. तो इन पे क्या तकरार होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. और KMT और उसके लीडर रूल करते हैं कि यहाँ पे दे फ्लेड टू विच रीजन? ताइवान. ओके, वॉर ब्रेकआउट होने में, चाइना के बाद वॉर ब्रेकआउट होने में क्या करते हैं? दे कम टू ताइवान, दे सेटल देयर एंड दे से नाउ ताइवान इज गोइंग टू बी रूल्ड बाय अस. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ चाइना. आप अपना देख लो, हम हमारा देख लेंगे. वी आर गोइंग टू बी रूलिंग. China is not accepting this. Okay, China still considers Taiwan to be. It also looks down upon other countries जो इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस करते हैं. ना क्या इंडिया के पास हम क्या ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक, क्या हमारी एम्बेसी है यहाँ पे? द आंसर इज नो, वी डोंट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस because we don't want to upset our neighbor, but we do have commercial relations. तो हम हमारे commercial relations, हमारे भी कुछ bodies सेटअप है ताइवान में. ओके, ताइवान भी सेटअप है. ताइवान का भी कुछ सेंटर्स हमारे इंडिया न्यू दिल्ली में भी सेटअप है. So we have
people to people ties, we talk about increasing the culture, we are talking about increasing the trade, all of that commercial interest है, diplomatic नहीं है, ठीक है. So therefore that is something that we should remember. और ताइवान में 1996 से direct elections भी हुआ करते थे, and they also elect their own presidential election. So recently, हाल ही में, you had the new president Lai Ching-te that was mainly elected as the president, the new president of the Taiwan region. ताइवान का जो कैपिटल है टेपे, ठीक है, ताइवान का कैपिटल कहाँ पे है, टेपे. So that is something that we can remember as fact, टेपे. Okay, तो इंडिया का जो रिलेशंस है 1995 में we have understood that we have a India Taipei Association, ठीक है, इंडिया टाइपे एसोसिएशन एंड द टाइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, ये टाइपे में भी सिचुएटेड है, मेनली टू इंक्रीज और एनहांस द पीपल टू पीपल टाइज इन दिस ताइवान रीजन. तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है लेकिन कमर्शियल रिलेशन जरूर है. जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इट्स विद रिगार्ड टू म्यांमार जनता रिवाइव्स द प्लान्स फॉर इट्स चाइना बैक्ड मेगा डैम प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हमको मिलते हैं. व्हाट इज दिस न्यूज अबाउट? जनता की अगर हम बात करें, जनता इज मेनली द म्यांमार आर्मी, ठीक है, म्यांमार की आर्मी. ओके, तो ये वापस से चाइना का जो मेगा डैम प्रोजेक्ट, चाइना जैसे स्पॉन्सर करता है या लोन्स देता है अपने पड़ोसी को, बहुत दिलदार है वैसे. सो वी सी दैट श्रीलंका को भी लोन दिया है उन्होंने, एंड नाउ श्रीलंका आल्सो हैड सो मच ऑफ टफ टाइम, दे आर टेकिंग मोर बैकिंग फ्रॉम द IMF. इंडिया से भी वो मदद मांग रहे हैं टू रीपे ऑफ द लोन्स दैट it had taken from China. Now म्यांमार से भी हम ऐसा ही एक सिचुएशन देख रहे हैं where they are looking for reviving the plans that were earlier stopped. So 10 साल पहले की बात है जहां पे म्यांमार का जो पब्लिक है, जो ऑपोजिशन है, इन्होंने ये चाइना का डैम को रुकवा दिया था, बट लेटर ऑन इफ यू सी इन द करंट टाइम्स दे आर ट्राइंग टू गेट इट बैक. Now what is the problem here? Of course it's the Chinese, one of the biggest groups, own groups, SPIC, इनका एक ग्रुप है. They are mainly investing in the dam, and if you see where is the dam का नाम क्या है? It's called the Myitsone Dam, ठीक है. ये एक 6000 मेगावाट का डैम है. कौन से रिवर पे? अय्यारवाड़ी रिवर. ओके, अय्यारवाड़ी रिवर पे डैम का नाम क्या है? मित्सोने. सो दे आस्क यू what is the name of the dam that China is going to be backing? It is Myitsone, which is in Myanmar, and therefore this is why the news article is Myanmar जो है, इनकी जो आर्मी है, it's in good hands, a good relation with the Chinese government, and Myanmar एक वापस एक बहुत बड़ा टूल बनता है उनके लिए, चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, so that it will expand its Belt and Road Initiative and increase the dominance in this particular region. So therefore ये न्यूज इसके बारे में था. अय्यारवाड़ी में we have the Myitsone Dam of the Myanmar. Let's understand the last article of the day given in the Indian Express. Now ये कल के The Hindu में भी mention था, but I love that this article has broken down, जैसे Indian Express ने इसको break down किया है, और editorial था ये कल का भी. So let's understand both of the important facts and amalgamate and present it for you. So when you talk about what is the context? The context है कि पैलेस्टीन एक स्टेट को रिकग्नाइज किया है. किसने रिकग्नाइज किया है? नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन, वन ऑफ द फर्स्ट वेस्टर्न कंट्रीज टू मेनली consider Palestine as a state, recognize Palestine as a state. Now यहाँ पे बहुत सारे questions आते हैं, so let's break down this for you. What you mean by as a state? State का मतलब क्या है? A state यानी कि when you recognize as a state, that means countries can support a region's aspirations कि whatever these countries saying, whatever the people of the country saying, ये legitimate है, ये सही है, इनका भी कोई recognition होना चाहिए. When we say that we respect you as a state, we are considering that इनका जो rights है इनको मिलना चाहिए. We are considering them to be sovereign. Okay, we are considering them to be sovereign entity.
So therefore these countries have currently made it or said that they are recognizing the state of Palestine. क्या इजराइल इससे खुश होगा? The of course answer is no. इजराइल ने अपना जो एम्बेसीज है इस तीनों देशों में, he has called them, उनके एम्बेसडर्स को वापस से बुला दिया, he's recalled all of them. ठीक है, इजराइल ने इनको रिकॉल किया है बिकॉज they did not like what they have done with regard to Palestine in terms of recognition. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what does it mean to be recognized as a state? तो एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का नाम क्या है? कन्वेंशन का नाम है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन. मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स. ये कब बना था? 1933. तो ये कन्वेंशन बताता है 4 कंडीशंस, स्टेट बनने के लिए 4 कंडीशंस आवश्यक है. What are the 4 conditions? The first condition that it should have a population. इसके पास एक permanent population, कुछ लोग होने चाहिए. इसके अलावा टेरिटरी होनी चाहिए, कुछ डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए. एक गवर्नमेंट जो उनको रूल करने वाला एक गवर्नमेंट सरकार होनी चाहिए. एंड द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस, दूसरों कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करने के लिए उनको क्षमता होनी चाहिए. सो दैट इज व्हाट द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन talks about. 1933 conditions of how to be called a state. So if you have 4 conditions satisfied, you can be called a state. So this is a very important convention जो आपको याद रखना है, convention का नाम. Now UN में भी अगर हम बात करते हैं, भी you hear about member states, you hear about permanent observers. तो पैलेस्टीन जो है, is it a state as recognized by the United Nations? The answer is no. Why? Because it is a permanent observer state. ये एक member state नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है. और ये दिस इज नॉट द ओनली ऑब्जर्वर, और एक ऑब्जर्वर है जिसका नाम है होली सी. होली सी इज मेनली द वैटिकन सिटी इन रोम, जिसको हम होली सी कहते हैं. ओके, सो इट्स अ स्मॉल प्लेस एंड दैट इज ऑल्सो गॉट एन ऑब्जर्वर. सो वी टॉक अबाउट पैलेस्टीन का जो स्टेटस है यूएन में, ये कैसे, या what are the conditions with regard to this? अगर UN में भी उनको स्टेट का recognition चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में स्टेट का recognition चाहिए, what are the steps required for it? Let's understand. Firstly, we see that the permanent observer state की बात करते हैं, it needs to be granted. अगर member state grant होना है, इनको चाहिए 2/3 majority vote in the UNGA. कितना चाहिए? 2/3 majority by the UNGA, यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से 2/3 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, एंड देन ओनली कैन इट बिकम अ मेंबर स्टेट. बट इसके पहले भी एक कंडीशन है, ठीक है, वोट तो अभी लोग करेंगे, पर उसके पहले we have the UNSC, that is important, United Nations Security Council. ठीक है, United Nations Security Council, इन्होंने पहले रेकमेंड करना चाहिए, तभी ही ये वोट होगा, तब तक ये वोट नहीं होगा. नहीं तो अभी तक प्रोबेबली पैलेस्टीन एक कंट्री बन चुकी होगी, राइट, बट अभी तक नहीं है इन टर्म्स ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन. तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों अटका हुआ है? Why have they not given that recommendation? For that you need to understand कि ये बॉडी में कितने लोग हैं और कौन से हैं ऐसे मेंबर्स. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर जो है, 5 मेंबर आर परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, एंड देयर आर अदर 10 मेंबर्स दैट आर टेम्पररी मेंबर्स. जो 5 मेंबर्स है, ये कौन है? यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस. यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ठीक है, 5 मेंबर्स बन गए. और बाकी के 10 मेंबर्स ये रोटेट हुआ करते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया ऑल्सो हैड वाज अ पार्ट ऑफ इट इन 2020s. देयरफॉर दिस मेंबरशिप कीप्स ऑन रोटेटिंग, ठीक है, दे टेक इट फ्रॉम द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ से मेंबर्स लेते हैं, एंड दे हैव द 10 मेंबर्स व्हिच आर टेम्पररी. ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर रिकमेंडेशन देना है, ये जो 15 मेंबर्स हैं, इनका वोट इंपॉर्टेंट है. ओके, कितना वोटिंग मिलना है? 9 मेंबर्स एटलीस्ट राजी होने चाहिए, देन ओनली द वोट इज पास. 9 मेंबर्स, और इनमें 9 मेंबर्स में से
5 वोट किसका है? परमानेंट मेंबर्स। तो आप समझ सकते हैं that these 5 members play a very important role. US, UK, Russia, China and France play a very important role. Now in case if one of them also doesn't vote, they cannot go further. अगर ये 5 लोग, एक ने भी ना बोला या एक में भी वोट नहीं किया, यहाँ पे ये रुक सकता है. The voting will be null and void. So that is the major problem. और हमको पता है that Israel has very good relations with some countries that are in the permanent members के साथ इजराइल का बहुत अच्छा संबंध है, कनेक्शन है. सो ये जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो वोट है, ये you can say नामुमकिन हो सकता है. It can be made impossible. It cannot pass further to be recognized as a complete state. So this is mainly what is the status of Palestine as a state, mainly in the United Nations, as well as the current data में 3 जो important states हमको याद रखना है: Norway, Ireland and Spain. So that's all with regard to today's discussion, जहाँ पे हमने बहुत सारे important articles उसकी background story discuss किया है. Make sure you watch the video with regard to 20 questions, जहाँ पे हम देखेंगे. I'm going to check your knowledge with the 20 questions of the day. Thank you so much.